Good morning students, welcome to your English class. So students, in last class we have completed with the unit number 16 from your English grammar textbook. It was about the prepositions, okay? And in today's class we are going to start with the new unit, that is unit number 17, use of and, but, or from your English grammar. This is the English grammar textbook, and from that we are going to learn the new unit, that is unit number 17, and this unit is about the use of conjunctions. So these words and, but, or, they are nothing but the conjunctions. So conjunctions, what do you mean by conjunctions? Conjunctions are those words which join two words और phrases और sentences. ओके, conjunctions किसे कहते हैं? conjunctions उन words को कहते हैं जो words दो words या दो sentences या दो phrases को क्या करते हैं? join करते हैं. So basically conjunctions can be named as joining words as well. conjunctions को हम joining words भी कह सकते हैं. दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो phrases को एक साथ join करने वाले, जोड़ने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? conjunctions. So commonly used conjunctions are and, but, और. हम मोस्टली and का यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, but का यूज़ करते हैं या और का यूज़ करते हैं, है ना? आपने बहुत बार and, but और जैसे वर्ड्स का यूज़ किया होगा while writing your English sentences. Yes or no? Yes. So in this unit we are going to study in detail about all these conjunctions and when to use which conjunction in the sentence. Okay, ये सारा हम अभी इस चैप्टर में, इस यूनिट में कवर करने वाले हैं. So kids, sometimes we need words to join two words, phrases और sentences. So बच्चों, हमें कभी कभी दो words यानी दो शब्दों को join करने के लिए या किसी phrase को join करने के लिए या कोई भी दो sentences को join करने के लिए क्या होता है? किसी word की ज़रूरत पड़ती है. तो such words are called conjunctions. तो इन्हीं words को हम क्या बोलते हैं? conjunctions बोलते हैं. A conjunction is a joining word. तो conjunction को क्या बोल सकते हैं हम? conjunction को हम joining word भी कह सकते हैं. Now read these sentences. Ram has a pencil, full stop. This is one sentence. Ram has an eraser. This is the another sentence. So यहाँ पे दो sentences है. पहला sentence है Ram has a pencil. दूसरा sentence है Ram has an eraser. Okay? ऐसे दो sentences दिए गए हैं. Now with the help of conjunction we can join these two sentences. Okay, यहाँ पे दो अलग अलग sentences है, तो हम इन दो sentence का मिला के एक ही sentence बना सकते हैं with the help of conjunction. So see over here, Ram has a pencil and an eraser. So this word and, with the help of this word and, we are able to join these two sentences together. Ram has a pencil and an eraser. तो इन दो sentences का मतलब और इस एक sentence का मतलब क्या है? सेम ही है. यहाँ पे क्या था? राम के पास पेंसिल है, राम के पास इरेजर है, और इस पूरे सेंटेंस का भी मतलब वही है. राम के पास पेंसिल और इरेजर है. एंड मतलब और. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड एंड वी आर एबल टू जॉइन दीज टू सेंटेंसेस. दैट इज वाई एंड ओवर हियर इज द कंजंक्शन. एंड क्या है? कंजंक्शन. सेकेंड सेंटेंस और सेकेंड एग्जाम्पल. पारस इज हैप्पी. दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस. पारस इज हैप्पी. पारस नाम का लड़का खुश है. हिज सिस्टर इज सैड. उसकी बहन दुखी है. तो with the help of conjunction we will be able to write single sentence instead of these two sentences. अगर हम किसी conjunction का यूज़ करके इन दो sentences को एक sentence में ही लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये एक sentence है, ये दूसरा sentence है. तो conjunction का यूज़ करने के बाद इन दो sentence में जो meaning है उसी meaning का हम एक sentence बना सकते हैं. तो look over here how they have done it. Paras is happy
but his sister is sad. मतलब पारस खुश है पर उसकी बहन दुखी है. बट मतलब पर, किंतु. ओके, या मीन्स एक हैप्पी है तो दूसरा दुखी है. तो ऐसे करके उन्होंने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया. पारस इज हैप्पी बट his sister is sad. So we are able to form one sentence out of two sentences with the help of this conjunction but. But के इस्तेमाल से हमने क्या किया, दो sentences की बजाय एक ही sentence बना लिया है. ओके. थर्ड वन, do you want milk? Do you want juice? So there are two questions. Do you want milk is the one question and do you want juice is the another question. These are the questions because we are asking for something over here, and these statements, do you want milk, do you want juice, these statements are starting with the question word do, है ना. do, do, do मतलब क्या तुम्हें मिल्क चाहिए, क्या तुम्हें जूस चाहिए, ऐसे करके. तो there are two different sentences, but with the help of conjunction or the joining word we can make one question out of these two questions. अगर हम conjunction का यूज़ करते हैं तो इन दो sentences के बजाय हम एक ही sentence बनाएंगे जिसका meaning सेम होगा इन दो sentences के जैसे ही. ठीक है, अर्थ तो दोनों का सेम ही होने वाला है, मीनिंग मतलब अर्थ. ओके. सो डू यू वॉन्ट मिल्क और जूस मतलब यहाँ पे पूछ रहे तुम्हें दूध चाहिए या तुम्हें जूस चाहिए, तुम्हें दूध चाहिए या जूस. और मतलब और मतलब या. ओके. इन दोनों में से कौन सी चीज़ तुम्हें चाहिए, तो डू यू वॉन्ट मिल्क और जूस, तो मिल्क चाहिए या जूस चाहिए, ऐसे इस क्वेश्चन का मतलब है. एंड वी आर एबल टू जॉइन दीज टू क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड और. दैट इज वाई ओवर हियर और इज नथिंग बट द कंजंक्शन. ओके. फोर्थ एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल एंड अ बनाना. सो हियर नॉट नेसेसरीली कि योर कंजंक्शन विल जॉइन टू सेंटेंसेस. ओके. ये ज़रूरी नहीं कि जो कंजंक्शन है वो दो सेंटेंसेस को जॉइन करेगा, ये दो वर्ड्स को भी जॉइन कर सकता है. तो आई एट एन एप्पल एंड अ बनाना. सो ओवर हियर दिस वर्ड एंड इज जॉइनिंग टू वर्ड्स एप्पल and banana. So I ate an apple and a banana. Apple और banana इन दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है वर्ड and is the conjunction. मैंने एप्पल खाया और बनाना खाया, and मतलब और. फिफ्थ वन, the apple was sweet but the banana was unripe. मतलब इसका है, इसमें भी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया. फर्स्ट सेंटेंस वॉज द एप्पल वॉज स्वीट फुल स्टॉप, दूसरा सेंटेंस था द बनाना वॉज अनराइप. तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस भी हो सकते, पर यहाँ पे इन्होंने दो अलग अलग सेंटेंसेस के बजाय एक ही सेंटेंस लिखा है विद द हेल्प ऑफ दैट कंजंक्शन. विच इज़ द कंजंक्शन विच इज़ यूज्ड ओवर हियर, द कंजंक्शन यूज्ड ओवर हियर इज़ बट. तो यहाँ पे है एप्पल जो था वो स्वीट था पर बनाना कच्चा था. अनराइप मतलब कच्चा. Okay, so unripe means kacha. So we are able to join these two sentences with the help of the conjunction but. मतलब पहला सेंटेंस था एप्पल स्वीट है और बनाना कच्चा है, तो एप्पल स्वीट है बनाना कच्चा है, ऐसे दो अलग अलग सेंटेंसेस है. पर इन दो सेंटेंसेस को हम एक साथ जॉइन करके एक ही सेंटेंस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन बट. तो कैसे लिखेंगे इसको, द एप्पल वॉज स्वीट बट द बनाना वॉज अनराइप. द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज एप्पल स्वीट है बट मतलब एप्पल स्वीट है पर बनाना कच्चा है. ओके. पर बनाना कच्चा है. The sixth example is, are those bananas cheap or costly? So here this word or is joining the two words cheap and the second word is costly. Okay. So meaning of this question is,
आर दोज बनाना चीप और कॉस्टली मीन्स ये बनानास सस्ते हैं या महंगे हैं, और का मतलब या। ओके, दोनों में से एक पूछना है, सस्ते हैं या कॉस्टली है। दोनों में से एक ही चीज़ होने की जब संभावना होती है तब हम कौन सा कंजंक्शन यूज़ करेंगे, और if there is a possibility of happening the one thing out of the two given things, that time we use the conjunction or. Okay, so now we will move on to the exercises related to this use of conjunctions. Okay, first exercise, underline the conjunctions. So in this first exercise we have to underline the conjunctions from the given sentences. हमें जो conjunction है sentence में वो guess करना है और उसको क्या करना है, underline करना है. First sentence, I like noodles and pasta. So over here conjunction which is joining the two words is and. So underline this word and. He is tall but his brother is short. So इसका मतलब है वो लड़का लंबा है पर उसका भाई छोटा है कद में, पर उसका पर मतलब but. So but over here is the conjunction. It is joining the two sentences which are, the first sentence will be he is tall. This is the first sentence, and the second sentence is his brother is short. These two sentences are joined by the conjunction but over here. Do you like singing or dancing? So here conjunction is or. तुम्हें सिंगिंग पसंद है या डांसिंग पसंद है, तो सिंगिंग और डांसिंग में से एक ही चीज़ पसंद है, तो इसीलिए यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ किया है और. शीला एंड सानिया आर सिबलिंग्स. तो शीला और सानिया क्या है, बहनें हैं, सिबलिंग्स है. ओके, तो यहाँ पे कंजंक्शन आया है एंड. टी इज़ हॉट बट आइसक्रीम इज़ कोल्ड. सो यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ हुआ है BUT बट. टी गरम है पर आइसक्रीम क्या है, ठंडी है. ओके, BUT but is the conjunction which is used over here. This conjunction but is joining the two sentences over here. यहाँ पे जो ये conjunction but यूज़ किया है ये क्या कर रहा है, दो sentences को join कर रहा है. पहला sentence है tea is hot और दूसरा सेंटेंस है आइसक्रीम इज़ कोल्ड, और इन दोनों को ज्वाइन करके एक ही सेंटेंस बनाया है. कौन से वर्ड ने, ये वर्ड ने, BUT बट. ओके, so I hope you have understood which are the commonly used conjunctions over here. The commonly used conjunctions are commonly used conjunctions कौन से हैं, कॉमनली यूज. सबसे पहले तो हम एंड का बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, देन और, बट. ये कौन से हैं, कॉमनली यूज्ड कंजंक्शंस, एंड और बट. एंड का मतलब है और और का मतलब है या. दोनों में से कोई चीज़ होती है एक, तो उसको बोलते हैं इन दोनों में से ये या ये, तो अब यूज़ करते हैं और का. और बट मतलब पर, किंतु, परंतु, पर, इन जैसे मीनिंग वाले जब शब्द आते हैं तब हमें यूज़ करना होता है बट. ओके, नाउ सेकेंड एक्सरसाइज. Choose the correct conjunctions and fill in the blanks. So we have to choose the correct conjunctions out of the two given options over here in the blank space. Okay, Mona has one brother dash dash one sister. So Mona has one brother and one sister आएगा यहाँ पे, but आएगा क्या, नहीं, but won't fit over here. Mona has one brother and one sister is the correct sentence, but is not the correct option over here. He went to the market dash dash bought a toy. So over here he went to the market and bought a toy. देखो what will be the correct form of the sentence.
he went to the market and bought a toy seems to be correct. Yes. And if we use but, अगर हम यहाँ पे but यूज़ करते हैं तो देखो कैसे सेंटेंस बनता है. he went to the market but bought a toy. आपको कौन सा ठीक लग रहा है इन दोनों में से? एंड वाला सेंटेंस ठीक लग रहा है कि बट वाला सेंटेंस ठीक लग रहा है? यस, द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस is completed with the option and. That is why we will use here conjunction and. He went to the market and bought a toy. वो मार्केट चला गया और वहाँ से खिलौना लेके आया, है ना, खिलौना खरीद लिया, ऐसे करके. थर्ड वन, he went to the market dash dash did not buy anything. यहाँ पे भी हमने दो ऑप्शंस है and but. Now we have to choose the correct option. So we'll fill up the blank space with the both the given option and we will see which sentence is more correct. Okay, हम क्या करेंगे, दोनों ऑप्शंस को blank space के जगह फिल करके देखेंगे और देखेंगे कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस पूरा हमें सही लगता है या ग्रामेटिकली करेक्ट लगता है, वही ऑप्शन करेक्ट है. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कंजंक्शन यूज़ करना है तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं. ही वेंट टू द मार्केट एंड डिड नॉट बाय एनीथिंग. ये क्या है, इसका मतलब वो मार्केट चला गया और वहाँ से कुछ नहीं खरीदा. और दूसरा ऑप्शन है ही वेंट टू द मार्केट बट डिड नॉट बाय एनीथिंग. तो I found but is the correct conjunction which we have to use over here. He went to the market but did not buy anything. मतलब वो मार्केट तो चला गया पर उसने वहाँ से कुछ खरीदा नहीं. So here the correct conjunction will be, correct option will be but. Fourth one, are you in class 1 dash dash class 2? The two options over here but or. So we'll use both the conjunctions one by one and we'll complete this sentence and we'll see which sentence is the correct. Okay, पहले देखिए हम but यूज़ करेंगे. Are you in class 1 but class 2? Do you think this sentence is correct grammatically? No, this sentence does not have the proper meaning or this sentence does not fit grammatically correct. Okay, and the next option over here is or. Are you in class 1 or class 2? मतलब तुम क्लास 1 में हो या क्लास 2 में हो. So I think over here we have to use the option or. यानी वो पूछ रहा है तुम क्लास 1 में पढ़ रहे हो या क्लास 2 में, यानी क्लास 1 और क्लास 2 इन दोनों में से कोई एक चीज़ होने की पॉसिबिलिटी, या तो क्लास 1 है या तो क्लास 2 है. एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर दैट व्हेन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू हैव वन थिंग आउट ऑफ द टू थिंग्स देन वी यूज़ द कंजंक्शन और. कोई दो चीज़ों में से सिर्फ एक ही चीज़ होने की संभावना होती है तब हम कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं, और यूज़ करते हैं. फिफ्थ वन, माई बैट इज़ कॉस्टली डैश डैश द बॉल इज़ चीप. यानी मेरी बैट कॉस्टली है पर मेरा बॉल सस्ता है. तो यहाँ पे दो कंजंक्शंस के ऑप्शंस दिए बट और. माई बैट इज़ कॉस्टली बट द बॉल इज़ चीप. यानी मतलब क्या है, मेरी बैट महंगी है पर जो ये बॉल है वो सस्ता है. बट पर. ओके, व्हेन वी यूज़ कंजंक्शन बट व्हेन द टू सेंटेंसेस और द टू थिंग्स when the two things which are given in the sentences or the two sentences are differ from each other. Okay, when the two sentences given are different in some qualities or the things which are given in that sentences differ from each other, they have opposite sense. Okay, that time we use the option but. माई बैट इज़ कॉस्टली पर बट द बॉल इज़ चीप. मतलब क्या है, बैट तो कॉस्टली है पर बॉल चीप है. ओके, सिक्स्थ वन, आई लाइक लेमोनेड डैश डैश आई डोंट लाइक कॉफ़ी. मतलब क्या है, मुझे लेमोनेड पसंद है पर मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है. मतलब
ये पसंद है और ये नहीं पसंद, एक पसंद है तो दूसरा पसंद नहीं है। तो मैंने बताया था ना कि दो चीज़ों में से एक चीज़ अच्छी लग रही है और दूसरी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो मतलब क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, एक अच्छी लगने वाली है और एक ना अच्छी लगने वाली है। तो दोनों में डिफरेंस बताने वाला या अपोजिट क्वालिटीज़ बताने वाले जब सेंटेंसेस आते हैं, वर्ड्स आते हैं, तब हम कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं? बट। ओके, आई लाइक लेमोनेड बट आई डोंट लाइक कॉफ़ी। मतलब मुझे लेमोनेड पसंद है, नींबू पानी पसंद है, बट मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं, पर मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। नाउ दीज टू सेंटेंसेस, सेंटेंस नंबर 7 and 8, I want you to do it on your own. Okay, I will explain you the meaning of both the sentences, but I want you to fill up the blank spaces with the correct conjunction on your own. I like lemonade dash dash pineapple juice. Here the two options are and but. यहाँ पे क्या बता रहा है? मुझे लेमोनेड पसंद है और पाइनएप्पल जूस भी पसंद है। तो और आने वाला है, तो और के लिए कौन सा आएगा करेक्ट कंजंक्शन, वो आपको चूज़ करना है। सेंटेंस नंबर 8, व्हाट डू यू लाइक? लेमोनेड डैश डैश फ्रूट जूस। यानी उसने पूछा है तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें लेमोनेड पसंद है या तुम्हें नींबू पानी पसंद है या तुम्हें फ्रूट जूस पसंद है, या दोनों में से एक ही पसंद होता है। यानी मैंने बताया ना, दोनों चीज़ों में से कोई एक ही चीज़ सिलेक्ट करनी होती है या चूज़ करनी होती है, तो उस टाइम पे हम कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं, वही यहाँ पे यूज़ करना है। सो द टू ऑप्शंस आर एंड or. Okay, so I want you to complete sentence number 7 and 8 on your own, and the remaining exercise, that is exercise number 3, we will be doing it tomorrow. Till then, thank you, have a nice day.